what will see in the 7-number rule? The 7-number rule tells us that for monoatomic, ठीक है, what do you mean by monoatomic? So generally monoatomic मतलब एक ही एटम, डायएटॉमिक मतलब दो एटम, और ट्राइएटॉमिक मतलब तीन एटम, ठीक है. तो ट्राइएटॉमिक मतलब जनरली 3 एटम मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डायएटॉमिक मतलब जैसे बोल सकते हो O2, F2, Cl2, और मोनोएटॉमिक मतलब लाइक सोडियम, जो भी एलिमेंट होंगे फ्री स्टेट में उसको हम लोग जनरली मोनोएटॉमिक बोल सकते हैं. बट व्हाट इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक आयन? सो जनरली मोनोएटॉमिक आयन में देखा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी मोनोएटॉमिक आयन हुआ जैसे Fe ट्राई पॉजिटिव या ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे फॉर दिस आयंस तो यहाँ पे सिंपली क्या होंगे, इट विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज. तो यहाँ पे चार्ज कितना है? +3. तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंगे इस कंपाउंड का, इस एलिमेंट का? इट विल बी +3. इसका निकालने जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या होंगे? इट विल बी -2. So that means you can say, we can conclude in this rule that if a element, or if a simply you can say if a monoatomic element has some charge on it, so that will be its oxidation number. But if it is suppose Fe only, then its oxidation number is not a +3 here. So oxidation number is 0 here. Okay. So for elemental state, the oxidation number will be 0. But if an element carries some charge, whether it may be positive charge or it may be negative in charge, so that determines the oxidation number of that particular element. That is, if it is +3, then the oxidation number is also +3. So that is generally you have to check, okay, what is the charge of an element. Next, the important rule you can say, so interhalogen compound. Interhalogen compound, there is also some rules left out. I just forgot, but I have to include because it's a very, very important topic. You can say not a rules you have to learn in a very, very you can say in a very trick manner. That is the main thing. So interhalogen compound means, halogen combined with a halogen. That means if I want to write, then it will be much more clear. So halogen plus halogen. तो हेलोजन प्लस हेलोजन मिलके क्या होता है? इंटर हेलोजन. बस इस चीज को याद रखना अभी, ठीक है. इट्स अ वेरी ह्यूज चैप्टर, ठीक है. व्हेन यू गो फॉर हायर क्लासेस, दैट टाइम यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर in a very detailed manner. But we don't have to go in a detailed manner now only. We just have to know that halogen, when it combines with another halogen, it forms an interhalogens. So there are many compounds it can form when the halogen combined with the halogen. We'll discuss on that. So generally interhalogen compound means like interhalogen compound of fluorine, chlorine, bromine, iodine. So what are the interhalogen compounds? We know fluorine, chlorine, bromine, iodine. So fluorine can be combined with the chlorine if possible. Fluorine can combine with the bromine, fluorine can combine with the iodine. But mostly it has been seen that, मैंने आगे भी बोला कि fluorine का बहुत कम compound है because it's very, very you can say very, very reactive. That's why when it forms any compound, the reaction is so vigorous. So generally fluorine compound बहुत कम होते हैं. But yes, since still it has some compounds. So generally यहाँ पे fluorine का क्या होंगे generally? तो fluorine का देखा गया कि generally it is not showing, it is not having so much compounds. But in case of chloro, in case of bromo, in case of iodine, chloro, bromo, iodo, they have such compound. They have some compounds. So what are the compounds they are forming? We will check on that. So generally हम लोग को यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है कि यहाँ पे ये लोग का सबका चार्ज क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? जनरली -1 होते हैं बिकॉज दे आर फ्रॉम सेम ग्रुप. बट व्हाट विल बी द केस इन दिस केस? लाइक मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होते हैं फ्रॉम द अदर एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या चीज होंगे?
तो जनरली अगर सपोज फ्लोरो और क्लोरो है तो यहाँ पे हम लोग जानते भी है कि फ्लोरो दैट मीन्स फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू द क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अगर क्लोरो से ब्रोमो आओगे तो क्लोरो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमो। इफ अगर ब्रोमो से आयोडीन आओगे तो ब्रोमो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होते हैं जनरली डिक्रीसेस होते हैं ना। तो बस अभी इस चीज को याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस होते हैं फ्रॉम ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो फ्लोरीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल अमॉन्ग 118 एलिमेंट इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 4.0। क्लोरो का होता है फ्लोरो ना द ऑक्सीजन का होता है 3.5। यस 3.5। तो यहाँ पे क्लोरो का होगा 3.5 और ऑक्सीजन का भी क्या होता है 3.5 होता है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू होते हैं। तो देख सकते हो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो फ्लोरीन इज जनरली सबसे ज्यादा वैल्यू होते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो स्केल होते हैं, एक स्केल होता है पाउलिंग स्केल, उस स्केल में जब हम लोग ने एनालिसिस किया तो उस स्केल का वैल्यू आता है 4.0। दैट मीन्स इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो व्हाट वी हैव सीन दैट from top to bottom electronegativity decreases. So any such compound is there where interhalogen compound, yes, interhalogen compound are various like IF7. One interhalogen compound we are getting, that is IF7. So we all know that iodine also from group 17 and the fluorine is also from group 17. So इसका नाम है iodine heptafluoride. तो ये यहाँ पे दोनों हेलोजन क्या हो रहा है कंबाइन हो रहे हैं, बट fluorine in heptatomic state and the iodine in monoatomic state you can say, but the compound here they are forming, that is in the same halogen family they are forming compound. Now the question is that what about the oxidation number of iodine, what about the oxidation number of fluorine? As we all know that fluorine is most electronegative than iodine, so generally here the fluorine will be charged as -1. If it is -1 then iodine will be what, +7. So here iodine will be +7 and the fluorine will be -1. So you have seen ना, तो जनरली यहाँ पे इंटरहैलोजन कंपाउंड होने के बाद भी देखा गया तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 while that of iodine is +7. तो इससे क्या मिल रहा है हम लोग को स्टडी में कि जनरली अगर हम लोग का इंटरहैलोजन कंपाउंड में अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहते हैं या फिर इन कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, और जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें क्या चार्ज आएंगे, प्लस चार्ज आएंगे. लाइक one more compound I want to give you, that is bromo trichloride. तो यहाँ पे BrCl3 का अगर ब्रोमो का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे then what you will get? So we all know that chloro and bromo. So chloro bromo. So chloro is coming before than bromo. So that means bromine. So यहाँ पे bromine का चार्ज कितना होंगे? So we all know that bromine का चार्ज कितना होंगे यहाँ पे? कितना होंगे guys? यहाँ पे bromine का चार्ज it will be -3 and chlorine का चार्ज कितना होंगे? नहीं, इसमें कितना चार्ज होंगे? +3 होंगे, और यहाँ पे क्लोरीन का कितना होंगे? -1. So you all know that oxidation number of chlorine will be -1 and that of the bromine is +3. See how I have written, how I have calculated that I am not showing to you now. It's my duty to show you, but not now only. Afterwards I'll show you. After completing my rules I will show you. But just you have to know that, you have to see only that whether any interhalogen compound में भी ऐसा हो सकता है क्या, वो चीज को मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेशंस किया या कैसे कैलकुलेशन करके मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे +3 -1, ये मैं बाद में शो करूंगा. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था मैंने ये चीज को बोल दिया अभी. तो और एक दो प्रॉपर्टी मैं ऐसे बोल देता हूं कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड हुआ, सपोज तुम्हारे पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ पे तुमको क्या पकड़ना होगा? सो इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0. मतलब सपोज अगर तुमको सपोज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसमें कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड,
तो यहाँ पे कितना एटम है, सपोज मेरे पास एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, सपोज मैंने इसको एक्स लिखा, दो ऑक्सीजन का कितना होता है मुझे मालूम नहीं है, मैंने ऐसे लिखा, अभी लिख रहा हूं, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 0. व्हाई इट विल बी इक्वल टू 0? बिकॉज सम ऑफ ऑल द एटम्स विल गिव यू, दैट इज विल बी इक्वल टू 0 फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स. तो यही है, ये एक रूल्स है, ये रूल्स में भी आता है जनरली. और एक चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर कॉम्प्लेक्स आयंस हुआ, तो अगर कॉम्प्लेक्स आयंस हुआ मतलब अगर आयन होता है, तो आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. कॉम्प्लेक्स आयन मतलब सपोज ये वाला एक कंपाउंड है, सपोज एक चीज मैं तुमको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन में एक चीज बताता हूं. सपोज कॉम्प्लेक्स आयन में जैसे C2, नहीं ये वाला नहीं, थोड़ा टफ हो जाएंगे. कॉम्प्लेक्स आयन पूरा आयन के ऊपर चार्ज होंगे, जैसे SO4 डाइनेगेटिव, सल्फेट आयन. यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? सो यहाँ पे तुमको सपोज सल्फर का निकालना है, कैसे निकालोगे? तो सल्फर को पकड़ लो x, जिसको निकालना है उसको इसको पकड़ना है x, प्लस ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है हम लोग ने देखा अभी, क्योंकि ये ना ये सुपर ऑक्साइड है, ना ये पैरोक्साइड है, ना कुछ उस टाइप का कंपाउंड है लाइक O2, OF2 या फिर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. तो उस टाइप का कंपाउंड ही नहीं है, उसमें फ्लोरो कंपाउंड ही नहीं है, ना सुपर ऑक्साइड है ना पैरोक्साइड है. तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़ेंगे, ऑक्सीजन का कितना होंगे, अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग कितना पकड़ेंगे, 4 × -2. बट यहाँ पे चार्ज कितना है, -2, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू -2 होगा. मतलब यहाँ पे एक चीज हम लोग यहाँ पे एक हम लोग डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स. मैं यहाँ पे ऑल द एटम क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ कर रहा हूँ, और मुझे जो निकालना है मैं इसको क्या किया, मैंने एक्स पकड़ा उसको, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है ना, सल्फर का निकालना है. तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है, which is in the bracket only, and it gives a charge that is having a charge -2. So sum of all the oxidation number of all the atoms in the ion, एक ion है ना, is equal to the charge of the ion. So equal to the charge on the ion. तो ये हम लोग का एक रूल्स आते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड अगर चार्ज कैरी कर रहा है, सपोज नेगेटिव या पॉजिटिव, तो जनरली आफ्टर इक्वल टू you have to give, suppose if the charge is +2 then equal to +2, if the charge is -2 then it will be equal to -2. If it is a neutral atom, already you have seen, that means it is equal to be 0. So that is the thing only you have to remember. Now one more one very important you can say thing is that, so generally we can't escape also, we cannot अगर मैं डिस्कस नहीं करता हूं तो ये तुम लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन डूइंग कैलकुलेशंस. तो और एक रूल मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई भी अगर कंपाउंड होता है लाइक कार्बोनेट आयन, सपोज यहाँ पे तुमको बोला कि सपोज तुमको क्वेश्चन आ गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सपोज इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, किस चीज के लिए निकालोगे, कार्बन के लिए निकालोगे, ऑक्सीजन के लिए निकालोगे. So in that case what we have to see that, अगर यहाँ पे सपोज पार्टिकुलरली तुमको नहीं बोला कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दो, तो अगर यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं किया तो ऐसे से पूछ लिया कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन, सो व्हाट विल बी योर आंसर. सो हियर यू हैव टू सी दैट इट इज ए पॉलीएटॉमिक आयंस. यस ऑब्वियसली इट इज ए पॉलीएटॉमिक, यहाँ पे एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, सो इट इज मोर देन व्हाट, मोर देन 2 एटम्स या मोर देन 3 एटम्स, यू कैन से, दैट इज you can say tetraatomic. So generally एक -2 चार्ज कैरी कर रहा है इस कंपाउंड में, हम लोग देख सकते हैं ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms, sum of the oxidation number of all the atoms in the ion is equal to the charge of the ion. ठीक है, तो sum of all the oxidation number, sum of the oxidation number of all the atoms in this ion is equal to be -2. और सिंपली यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कार्बन आयन का, -2 होंगे. ठीक है गाइस, तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि जनरली हम लोग ने देखा कि एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन, पार्टिकुलरली कार्बन के लिए मेंशन नहीं करके दिया,
तो सिंपली तुमको क्या करना है, यू हैव टू राइट द ओनली द चार्ज, दैट इज चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस पॉलीएटॉमिक आयन। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, if you sum up the oxidation number of carbon and oxygen, then you will get that is equal to the charge on the ion, that is -2 if it is polyatomic ion। so ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, मतलब ठीक है। so when you do some calculations, that time it will be much more clear for us, okay guys। so let's see one more thing here, that metals, जो metals होते हैं, ठीक है, मेटल्स का क्या होता है, ऑलवेज मेटल्स ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उन लोग का क्या होता है, जनरली नॉन मेटल्स में पॉजिटिव भी होते हैं एंड ऑल्सो माइनस, दैट इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। वी हैव ऑलरेडी सीन ऑक्सीजन कैन बी +1, ऑक्सीजन कैन बी +2, बट इन टर्म्स ऑफ अगर मेटल्स के साइड में आते हो, सो मेटल ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट विल नेवर बी माइनस, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर किसी का नेगेटिव आ रहा है तो उसका गलत आ रहा है, ठीक है। सो मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर ऑल्सो, यू कैन से, सो इट हैव ऑलवेज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बट फॉर द नॉन मेटल्स only the, if you consider the oxygen difluoride, you have seen that oxygen is what, that means oxygen is +2 and -1 when it forms a compound with another non metals like fluorine, oxygen difluoride and oxygen difluoride. That only we have discussed before that, na? So generally we have seen that it can form positive also or it can form minus oxidation states also. So non metals can show both these oxidation states, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये चीज को क्यों यहाँ पे मैंने क्यों बोला, क्योंकि तुम लोगों को एक चीज याद रहे कि मेटल्स का ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। और एक बात याद रखना कि अगर तुमको एक चीज याद रखना, मैं एक ट्रिक्स बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि अगर सपोज हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसके लिए निकालना है, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट एंड फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। सपोज पी ब्लॉक मतलब ग्रुप 13 से ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, बट यहाँ पे ग्रुप 18 क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लूड करेंगे, हम लोग देख रहे हैं। तो एस ब्लॉक के लिए देखेंगे और ग्रुप 13 टू 18 चेक करेंगे। सो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेंगे हम लोग को, सो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 होंगे, मतलब ग्रुप 1 क्या करेंगे, जनरली +1 शो करेंगे, इट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 2 में आओ, सो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, तुम्हारा स्ट्रॉन्शियम, ऑलवेज इट इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट, सो इट विल ऑलवेज गिव यू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या होंगे, इट विल बी +1 एंड ग्रुप 2 के लिए +2 होंगे, इट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट, सो फॉर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट the p block element is equal to what, it will be equal to what, it will be equal to group number minus what, minus 10. Why it is 10, group number minus 10, we'll get to know it now. So equal to group number minus 10 except noble gas, that is group 18। ओके यहाँ पे नोबेल गैस हम लोग अप्लाइड नहीं करेंगे, बिकॉज नोबेल गैस ऑलरेडी अचीव्स द व्हाट, फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज यू कैन से फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर -10, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप 13 का अगर देखेंगे, सो ग्रुप नंबर कितना होंगे 13, तो 13 - 10 इक्वल टू व्हाट, इट इज 3। अगर 14 में जाएंगे तो इट विल बी 4, अगर 15 में जाएंगे इट विल बी 5, अगर 16 में जाएंगे तो इट विल बी 6, 17 में जाएंगे तो इट विल बी। सो पी ब्लॉक एलिमेंट में हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन कितना मिलेंगे, अगर ग्रुप 13 हुआ तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना मिलेंगे, इट विल बी +3। अगर आओगे नेक्स्ट में, दैट इज 14 - 10 में अगर तो आओगे तो कितना आएगा, सॉरी फॉर दैट, आप भी देख सकते हो ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं,
तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 14 से मैं क्या कर रहा हूँ, -10 कर रहा हूँ, तो मुझे कितना मिलेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुप 14 में +4 मिलेंगे, इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। 15 में क्या मिलेंगे +5, 15 में +5 मतलब लाइक PCl5, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉस्फोरस का कितना होंगे +5 होंगे, यही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। विल लेटर ऑन इट विल बी मच मोर क्लियर, ठीक है। तो ऐसे करके तुम याद रख सकते हो कि हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट कितना मिलेंगे फॉर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक्सक्लूडेड। सो 16 - 10 मतलब 6, मतलब ग्रुप 16 में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना मिलेंगे, इट विल बी +6। व्हाट अबाउट ग्रुप 17, +7 मिलेंगे, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, ठीक है गाइस। we'll later on we'll see all those compound who are dealing with where the compound is showing +7 also। कुछ देर आगे हम लोग ने डिस्कस भी किया ना कि कैसे हो जाते हैं, हम लोग ने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट निकालना है फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, सो हियर ओनली द +1 एंड +2, ये याद रखना। मैक्सिमम ग्रुप 1 के लिए मैक्सिमम +1 होंगे और ग्रुप 2 के लिए मैक्सिमम +2, इसके ऊपर तो और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे। सिमिलरली ग्रुप नंबर अगर -10 करते हो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, तब तुमको क्या मिल जाएंगे, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट निकल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था ट्रिक्स। और अगर तुमको सपोज क्या निकलना है, अभी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट निकाला तुमने, जो अभी नेक्स्ट हम लोग को निकालना है, दैट इज हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम लोग अभी। सो हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन निकालने के लिए भी एक हम लोग का रूल्स है, तो रूल्स हम लोग को वो ट्रिक याद रखना है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए निकालेंगे, बिकॉज एस ब्लॉक का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब लिथियम नेगेटिव, सोडियम नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकते। सो हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ओनली वैलिड फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इज ओनली वैलिड फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये वैलिड है। तो पी ब्लॉक में क्या क्या आते हैं जनरली, ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, दैट मीन्स द ग्रुप 18 इज नॉट, यू डोंट हैव टू अगेन कंसीडर, डोंट हैव टू कंसीडर। सो यहाँ पे पी ब्लॉक में क्या क्या आएंगे। सो पी ब्लॉक में हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग को पी ब्लॉक निकालना है तो जनरली हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर कर देंगे, that means the number of valence electron मतलब number of electrons which is present in the outermost shell। तो अगर हम लोग ग्रुप 13 का निकालते हैं तो ग्रुप 13 के कितना होंगे, इट विल बी 8 माइनस, ग्रुप 13 में कितना होता है 3, दैट मीन्स मैक्सिमम नेगेटिव हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन कितना मिलेंगे यहाँ पे, दैट विल बी -5। क्लियर, ठीक है ना। ग्रुप 13 का कितना होता है, ठीक है ना, कोई भी एक एलिमेंट ले लो ग्रुप 13 का, ठीक है ना, बोरोन है ना। सो बोरोन का कितना होता है 1s2 2s2 2p1, सो 3 होता है ना। सो 8 माइनस 3 इट इज -5। अगर ग्रुप 14 आते हो तो कितना होंगे, 8 माइनस 14 का कितना होता है 4, दैट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 होते हैं, तो जनरली यहाँ पे -4 होंगे, ठीक है। अगर और भी एलिमेंट में आते हो, लाइक सपोज ग्रुप 15 में आते हो, तो ग्रुप 15 में कितना देंगे हम लोग को, सो ग्रुप 15 में हम लोग कितना देगा, सो इट विल बी 8 माइनस 5, सो सॉरी काली का बहुत प्रॉब्लम देता है कभी कभार, 8 माइनस 5 इट विल बी -3। सिमिलरली ग्रुप 16 में आओ, 8 माइनस 6 दैट इज -2। अगर ग्रुप 17 में आओगे इट विल बी गिव यू 8 माइनस 7 दैट इज -1। सो देख सकते हो कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप 13 में हम लोग ने देखा कितना हो सकता है मैक्सिमम -5। तो जनरली यहाँ पे -5 कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक चीज देख सकते हो तुम लोग, मैं यहाँ पे एक चीज तुम लोग को समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा ट्रिक समझा देता हूँ। देखो बोरोन का कितना होता है 1s2 2s2 2p1, मतलब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5। तो इसलिए ये जो 2s और 2p है ये होता है आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल्स। तो 2s में ऐसा होता है एक घर और p में 3 घर होता है, तो 2s2 2p1। सो अगर जब कंपाउंड फॉर्म करेगा तब भी तो ऑक्सीजन स्टेट मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे, मतलब जब कंपाउंड फॉर्म करेंगे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल विल जंप टू द p ऑर्बिटल।
ठीक है, समझ में नहीं आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बाद में ये चीज को डिस्कस करेंगे इन एस ब्लॉक एलिमेंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे बस एक देख सकते हो, यहाँ पे कोई देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 1 2 3 4। बट यहाँ पे ग्रुप 13 में हो रहा है -5 हो रहा है। वेदर इट इज सो, वेदर इट कैन फॉर्म द ग्रुप 13 एलिमेंट। सो ग्रुप 13 एलिमेंट क्या -4 हो सकता है कि नहीं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। सो ये चीज पॉसिबल है कि यहाँ पे ग्रुप 13 में -5 हो, नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट दैट इज -5। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा वो लग रहा है, यहाँ पे डाउट लग रहा है। 3 1 2 3 4, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है ग्रुप 13 का। 5 6 7 8, यस ओके, इट्स -4 -4। हाँ, ग्रुप 15 के लिए -3 हो सकता है, हाँ -3 होंगे। ग्रुप 16 के लिए 8 -6 दैट इज -2, हाँ इट्स ओके। ग्रुप 17 के लिए -1 होंगे, ये तो ठीक है। बट ग्रुप 13 के लिए -5, द हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, whether any compound is there where it can form -5 oxidation state, BCl3, but generally it forms +3 and +3, na? So +2 and +3 is possible only. Lithium boron, okay. Guys, so one thing is that ग्रुप 13 का मुझे ये थोड़ा वो लग रहा है, 8 - 3 है ना, ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है। ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ पे कॉन्फ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पे -5 कैसे बन गया मतलब। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा फिर भी। अब बाकी का ठीक ही है, ग्रुप 14 का तुम लोग देख सकते हो, बाकी का ग्रुप 14 जो है 8 - 4, इट्स -4 बिकॉज नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट कितना हो सकता है, -4 तक हो सकता है। जैसे CCl, नॉट CCl4 सॉरी, लाइक कोई भी ऐसा कार्बन का पकड़ लो, या फिर कोई भी कंपाउंड है, हाँ SiH4, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, ओके सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, यहाँ पे सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड में नहीं, लीड लीड PbCl4, जनरली PbCl4 एग्जिस्ट तो होते हैं बट जनरली, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बाकी लोग का ठीक है, -4 तक हो सकता है बिकॉज टेट्रावेलेंट है, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। यहाँ पे ग्रुप 17 है, मतलब ग्रुप 16 है या 15 है, 15 में क्या हो सकता है, जनरली इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट -3 हो सकते हैं, लाइक PCl3, NCl3। ग्रुप 16 में क्या है, हाँ हो सकता है, लाइक यू कैन सी व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन इन केस ऑफ, अगर ग्रुप 16 है तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ग्रुप 17 है इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स it can have valency of, that means it can have oxygen state -1. There are compounds, there are many compounds where it can shows, the element can shows from the particular groups the maximum oxygen state, the highest negative oxygen state. But what about the group 13? I have to check on it, okay? I have to check on that. तुम लोग अभी ये जितना भी पढ़ा है उतना तो तुम देख सकते हो। मैं ग्रुप 13 का ये चीज को मैं कॉन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट्स, वेदर इट कैन बी -5, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, मैं फिर भी एक चीज को चेक कर दूंगा। ठीक है, सो पी ब्लॉक एलिमेंट में आई थिंक ऐसा हो सकता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट शायद फ्रॉम 14 इट हैज स्टार्टेड, बट ग्रुप 13 के लिए ये वैलिड नहीं है शायद। ठीक है, सो आई विल चेक ऑन दैट, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप 13, ओके। मैं इस चीज को बता दूंगा, बाकी सब लोग ठीक ही है। So guys, I hope you like my content also. You like my content. I think you are studying in a very systematic manner. ठीक है, तो मैंने जो इंस्टाग्राम में मैंने कुछ यहाँ पे कुछ रूटीन डाला था, क्लास रूटीन्स फॉर माय यूट्यूब क्लासेस, तो वो इस वीक से तो फॉलो नहीं हो पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ऑफ, बोल सकते हो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक और जो कमिंग संडे आ रहा है, so probably most probably I'll give you some informations regarding chemistries, uh, anything it may be, okay? So just stay tuned for informative videos also. It's a very new thing for me, so generally ऐसे ही प्यार करते रहो, और इतना सारा प्यार मिला, 500 सब्सक्राइबर्स मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट योर लव ओनली। सो ऐसे ही प्यार बनाते रहो, और तुम लोग भी अच्छे से रहो, वो भी बात है, और सिचुएशन को समझो, वो भी बात है, और साथ ही साथ मम्मी पापा का ध्यान रखो, हाथ धो के खाना, बार बार बोलता हूँ, और एकदम बी पॉजिटिव। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।